Hello students, today we discuss most important topic number second, double entry bookkeeping system. Into this double entry bookkeeping system, we discuss journal entry, how to pass. It is most important book in our accountancy because every businessman have maintained their records first into this book that is called general entry. Into this journal, we see how to write down day-to-day transactions. The businessman, why this book is necessary to each and every businessman, why maintain their records first into this book that is called general entry, that is called general. General means what? We see the meaning of that word general, and then after we see the details about that topic, general entry. General means the Latin words, a French word जो आपका है, French word jour. Jour means day. Day-to-day transactions are recording into this book. It is called general. So general is a primary records we are maintaining into this book. Primary entry, the first entry we are recording into this general. So boys, today we discuss the word general and how to write the general and specimen of general and importance and utility of generals. Some important concepts we discuss into this book, into this lecture. General entry. The general means what? We see the format of general. We see the how to pass entry into this book. It is a prime book. It is a first book. It is the first stage of our accountancy. How to write the general we discuss now, students, into this lecture. So first of all, we see general, chapter number 3, subject bookkeeping and accountancy. It generally asks in our question number 2 and question number 3. Going to 10 marks. Question number 2 और 3 में ये 10 मार्क के लिए पूछा जाता है. जनरल जो वर्ड है ये, इट इज अ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जॉर. फ्रेंच वर्ड जो जॉर है, जॉर मीन्स डे, जॉर मीन्स दिन. द डे ऑफ द बुक, द डे ऑफ द ट्रांजेक्शंस वी हैव राइट डाउन इन दैट डे, इट इज कॉल्ड जॉर. जॉर मीन्स डे. डेली रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, डेली बिजनेस रिकॉर्डिंग deals, daily business transactions we are recording into this book. It is the first book of our accountancy. It is called general. It is a general entry. We should pass into this book. How to pass entry into this general? We discuss now into this lecture. और we see the format of general. इस lecture में आपको discuss करना है. तो the word general derived from French word jour. It means a day. It means a day. A businessman records the business transactions in the different books, but general is most important book of our accountancy. The businessman, their transactions, they use the different types of books. This is a prime book of accountancy. It is called general. It is called रोजकृत. डेली रिकॉर्ड्स भी राइट डाउन करते, दैनंदिन उसे कहा जाता है. जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उसकी जो एंट्री आप पास करते हैं वो फर्स्ट इस बुक में पास करते हैं, उसे कहते हैं जनरल. तो जनरल डिफरेंट बुक्स बट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट विच मस्ट बी मेंटेन बाय एवरी बिजनेसमैन आर जनरल एंड लेजर. द टू इंपॉर्टेंट बुक्स द बिजनेसमैन मेंटेन इनटू देयर बिजनेस, जनरल एंड लेजर. These are two most important books. First of all, we discuss only the general entry. We discuss only the general. What do you mean by general? Then after we see the next topic, ledger. इसलिए general के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है. But it is important books of accountancy. General is a book of original entry and primary entry. Original entry we have write down into this book. जो original entry आपकी होती है, जो first entry आपकी होती है, जो आप daily record करते हैं, daily transactions we are write down into this book. It is called general entry. In simple word, the books of accounting is called general. It is an important book of our bookkeeping.
book of accounting, it is the most important book of bookkeeping and accountancy. So the basic book of accounting is called general. That is a simple definition of general. The basic book of accounting कौन सा है? जनरल आपका होता है. General as an important books of accountancy. So into this book we see the general is the original entry and primary entry, and first entry we are write down into this book. It is called general entry. So every transactions is originally recorded into the general. Every transactions, because large number of transactions we have seen into this, into our business. So daily records, day-to-day transactions we are write down into this book. It is called general entry. So from general it is a posted into the ledger. जनरल से लेजर में आप क्या करते हैं? एंट्री पोस्ट करते हैं. इट इज अ प्राइम बुक ऑफ अकाउंटेंसी, ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट एंट्री वी आर राइट डाउन इन दिस बुक. इट इज कॉल्ड जनरल एंट्री. सो व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इनटू द जनरल, जब जनरल में आप रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करना है, अपने व्यवहार की नोंद करना पे, रजिस्ट्रेशन आप करना. इट इज कंपल्सरी, इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ दैट. वी हैव टू रिकॉर्ड द टू फोल्ड effect of every transactions. Every transactions have two necessary effect. Two effects are affected. Which two accounts are involved into these transactions? We are write down into this general. So two accounts are affected of every transactions: debit and credit. The applying the rules of debit and credit. Applying the rules of personal account, real account, and nominal accounts. We are applying the rules of debit and credit into this general. So the terms of debit and credit are applying the rules of debit and credit into this entry when you pass. We see the spacing of general. General का जो spacing आपका है, date, particular, LF, debit amount, credit amount. ये spacing उसका है. Date में आप year, month और आपको जो day है, write down the date of the transactions. Particular, which will detail explanation about our transactions, we write down account to be, which account to be debited, which account to be credited, the name of the account debited, name of the account credited, and write down the narration into this particular column. LF मीन्स लेजर फुल, उसे पान क्रमांक कहा जाता है. डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. डेट जो कॉलम आपका है, डेट में आप लिखेंगे ईयर. इनटू दिस डेट कॉलम वी राइट डाउन ईयर. पहले साल लिखेंगे, उसके बाद में उसका मंथ, और उसके बाद में डे. एंड सपोज 26 मार्च 2021 ये डेट है समझो, यानी आपका ईयर आ गया 2021. या इस टाइप को आप इस टाइप में भी लिख सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स मैंने इसके बारे में इसके ऊपर वीडियो बनाया. 2021 मंथ है आपका मार्च, 31 मार्च, डे आपका 26, यानी 26 मार्च 2021. इस टाइप में भी आप डेट लिख सकते हैं. या क्लियर कट जो हमेशा की तरह लिखते हैं 26 मार्च 26 मार्च 2021. राइट डाउन द डेट इनटू द डेट कॉलम. डेट कॉलम में डेट लिखना है. पर्टिकुलर कॉलम में वन लाइन जो आपकी होती है, पर्टिकुलर कॉलम की वन लाइन ऑफ द अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड, एंड नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, राइट डाउन हियर नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, एंड नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड. डेबिट का अमाउंट, डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट आप लिखेंगे, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट आप लिखेंगे. नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, जो अकाउंट आपका, दो अकाउंट जो अफेक्टेड आपके होते हैं उसमें से जो अकाउंट आपका डेबिट है वो डेबिट यहाँ लिखना है, जो अकाउंट आपका क्रेडिट है वो क्रेडिट आपको लिखना है. thereafter थर्ड लाइन जो आपके है, थर्ड लाइन नैरेशन इज रिटर्न. नैरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग. नैरेशन ये बीइंग से स्टार्ट होता है, इट इज कॉल्ड नैरेशन. फर्स्ट लाइन आपकी हुई नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड. सेकंड लाइन आपकी हुई नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड. थर्ड लाइन जो आपकी है राइट डाउन द नैरेशन. नैरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, इट इज नेसेसरी. विच अकाउंट टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, राइट डाउन दिस अकाउंट इनटू दिस फॉर्म ऑफ जनरल. ये जनरल का स्पेसिम है, ये जनरल का फॉर्म है. तो नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, thereafter we write down into the bracket being, narration start work from being, और बाद में इसको आपको क्लोज करना है. टू पैरेलल लाइन्स टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, आगे दो लाइन आपके यहाँ पे ड्रॉ करना है. ये जो थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन जो आपकी होती है, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉ. आपको हर एंट्री के बाद में दो पैरेलल लाइन आपको पर्टिकुलर कॉलम तक आपको पे खींचना है. फोर्थ लाइन कौन सी होगी? देखो ये वन लाइन नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, सेकंड लाइन नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड,
थर्ड लाइन आपका नरेशन, फोर्थ लाइन आपका टू पैरेलल लाइन इज नेसेसरी टू ड्रॉ इनटू व्हेन योर ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड। जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो आपको टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी जो आड़ी लाइन आपको दो खींचना है, इट इज नेसेसरी टू ईच एंड एवरी राइट डाउन एवरी ट्रांजेक्शन। जब आपका एक उस डेट की ट्रांजेक्शन आपकी होती है तो आपको क्या करना है, उस एंट्री को कंप्लीट करने के बाद टू पैरेलल आपको लाइन, द फोर्थ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन। फोर्थ लाइन, ये फर्स्ट लाइन आपकी हुई, राइट डाउन द नंबर, ये फर्स्ट लाइन, ये आपका सेकंड लाइन, बीइंग का थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन आपका लाइन का। तो फोर्थ लाइन जो आपके है इज हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन इनटू दिस। इस तरह आपको एंट्री पास करना है जर्नी के अंदर। हाउ टू पास एंट्री, वी सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस, देन आफ्टर वी सी द into this lecture we see only the format of general entry, which is the importance of general entry, which is the meaning of general, that is importance, that is a special specimen of everything. So businessmen have maintained their records into this first book. इसलिए businessmen क्या करते हैं, recording their transactions into this book, that is called general. This is a important books of accountancy because these books is important, play important role when you write next accounts, when you maintain the ledger records, when you maintain the trial balance. We should see the primary records into this book, that is called general. First entry we should write down, original entry we should write down into these books, it is called general. उसे general कहा जाता है। इसलिए डेट किस में आप डेट लिखेंगे, डेट लिखने का ईयर मंथ और डे आपको लिखना है। पर्टिकुलर में आपको लिखना है, फर्स्ट लाइन में आपको अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन नरेशंस, फोर्थ लाइन टू पैरेलल लाइन्स विल बी ड्रॉन कंपल्सरी टू आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन बाद में आपको दो पैरेलल लाइन पर्टिकुलर कॉलम तक आपको क्या करना है, दो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉ इन फोर्थ लाइन। इसके बाद में आपको एलएफ मींस पान क्रमांक आता है, इसका बाद में टोटली, इसका आपको टोटलिंग करना है। जब आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है, इसी पास द टोटल, इसी में मेक द टोटल, उसका आपको टोटल करना है। Total is compulsory to each and every transactions. So at the end of the each page, जब पेज आपका खत्म हो जाता है, at the end of the each page, the general entry should be total. उसमें आपको totalize आपको करना है। The debit and credit amount column are to be total and to check the debit amount and credit amount are equally. And arithmetical accuracy we have seen into this format. And दोनों साइड की टोटल आपकी इक्वल आती है, जो टोटल आपकी आई हो इक्वल आई जाती है, इक्वली आना ही चाहिए, क्योंकि जिस अमाउंट से आपका अकाउंट डेबिट होता है उसी अमाउंट से अकाउंट अनदर अकाउंट आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। चैप्टर नंबर 2 आपने देखें, डुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं, विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस ट्रांजैक्शंस। दिस इज अ प्राइमरी बुक वी डिस्कस नाउ इन दिस लेक्चर। सो जनरल इज कॉल्ड द ओरिजिनल एंट्री एंड प्राइमरी एंट्री। उसे ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री का रिकॉर्ड उसमें आप मेंटेन करते हैं, इसलिए जनरल पे इंपॉर्टेंट रोल इन आवर अकाउंट। देयरफॉर एवरी बिजनेसमैन जो आपके होते हैं, देयरफॉर दिस ट्रांजैक्शंस must be recorded, and different types of books he keeps the different account of records, businessman generally into this book. It is the number of transactions, the number of book is depend upon the size of nature of business. Number of transactions we have seen into this general. So the number of books are depend upon the size of business and volume of transactions, but important book is our general. This is a important book of our accountancy. This is an important book of our account. So maintained by every businessman of general and ledger. Though books, every businessman maintain their records into this general. So this is important books of accountancy we see know. So every transaction is original entry recorded into this general form. General is it is posted into the ledger. उसके बाद में क्या करते हैं, पोस्ट लेजर में आप उसकी पोस्टिंग आप करते हैं। We have to record a 2-4 effect, 2-4 accounts we have seen into this. When you pass the entry of general, we have to record 2-4 effects of every transactions in the terms of debit and credit, applying the rules of into this when you pass the entry into this general. So this is the format, this is the spacing of general entry का spacing आपका है, date, particular, LF, debit amount, credit. So students, we into this lectures we discuss the meaning of general. General means French word jour. Jour means day. Day-to-day records we are write down into this book. It is called general entry. In simple word, the book, the basic book of accounting is called general entry. ये डिस्कस अपने इस वीडियो के अंदर अपने किए हुए।
यहाँ पे अपने आप देख रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, इट इज कॉल्ड जनरल. दिस इज द स्पेसिंग ऑफ जनरल वी डिस्कस नाउ इनटू दिस लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो वी सी द हाउ टू ट्रांजेक्शंस ट्रैवल. ट्रांजेक्शंस किस तरह ट्रैवल करते हैं, which we discuss now. How to pass entry into this general. Which documents are play important role into this general. Voucher play the important roles when you write our transactions into this book general. जब जनरल एंट्री में जब एंट्री पास करते हैं, द बेस ऑफ आवर वाउचर्स, जो प्राप्ति आपके पास होते हैं, जो प्रमाणक आपके पास होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं जिसमें आप ट्रांजेक्शंस करते हैं, जो प्रूफ होता है आपका लीगल प्रूफ के बारे में आपको देखना है. सो हाउ टू पास the transactions, how to pass the transaction travels, या how to transaction travels किस तरह ट्रांजेक्शंस करते हैं, किस तरह ट्रांजेक्शंस पास किए जाते हैं बिजनेस के अंदर, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस वी हैव सी इन आवर बिजनेस, बिकॉज वी शुड राइट डाउन आवर each and every transaction into this general. So general entry या general play important roles in our accountancy. The next video में देखना है how to pass transaction या how to transaction travels we discuss now in next video. इसमें खाली आपने देखें जनरल इज इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी. फ्रेंच वर्ड पहले आपने देखे, फ्रेंच वर्ड जो जॉर है, जॉर मीन्स डे. फ्रेंच वर्ड से ये जनरल शब्द सामने आया, उसे कहते हैं डे. डेली रिकॉर्ड्स, डे टू डे ट्रांजेक्शन राइट डाउन डेट वाइज इनटू दिस बुक. डेट के अनुसार डेट वाइज डेली रिकॉर्ड्स वी आर मेंटेनिंग इनटू दिस बुक, इट इज कॉल्ड जनरल. उसे कहते हैं रोज निशी कहा जाता है, या दैनंदिनी उसे कहा जाता है, या रोज कीर्द उसे कहा जाता है हिंदी में. रोज कीर्द दैनंदिनी यानी डेली रिकॉर्ड्स वी आर मेंटेनिंग इनटू दिस बुक, द बेसिस ऑफ आवर वाउचर, बेसिस ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर वो एंट्री आप इसमें पास करते हैं. तो हाउ टू पास एंट्री इनटू द जनरल वी डिस्कस इनटू दिस लेक्चर. सो जनरल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो आपका फ्रेंच वर्ड जो आपका है, फ्रेंच वर्ड जॉर, इससे ये सामने पे आया. इट इज अ डे ऑफ बुक, जिस दिन आप एंट्री करते हैं, राइट डाउन करते हैं, ट्रांजेक्शन आपका होता है बिजनेस के अंदर, विच विल राइट डाउन द एंट्री इनटू दिस जनरल. दिस इज अ प्राइमरी बुक, दिस इज अ ओरिजिनल बुक, दिस इज ओरिजिनल एंट्री विच विल राइट डाउन इनटू दिस बुक, इट इज कॉल्ड जनरल. उसे बाद में एंट्री पास करते हैं, उसको जनरल एंट्री कहा जाता है. हाउ टू एंट्री जनरलाइज इनटू दिस बुक वी विल बी सी इनटू दिस चैप्टर जनरल एंट्री. इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है अकाउंटेंसी में का, क्योंकि इसके बाद में जो लेक्चर्स आपके हैं लेजर, इसके बाद में जो टॉपिक्स डिपेंड आपके होते हैं, इसके बाद में लेजर आपका होता है, सब्सिडी बुक्स होता है आपका, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये सर्कल अकाउंटिंग साइकिल जो आपका है वो आपको डिस्कस करना है. इसलिए जनरल एंट्री क्या होता है इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए. सिंपल नंबर ऑफ पॉइंट, फ्रेंच वर्ड जो है डिराइव्ड द फ्रेंच वर्ड जॉर, जॉर मीन्स डे. Day-to-day transactions we are added into the books. This is the original book of our account because it is a primary entry which we write down into this book. ये होगा आपका, which is the format of जनरल का फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर, LF का कॉलम, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, 4 ये कॉलम आपको ड्रॉ करना है. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट 1 2 3 4 5 कॉलम का आपका इसका फॉर्मेट आपका होता है. उसमें बहुत सा कौन सा डेबिट है, डेबिट एंड क्रेडिट आपको लिखना है. नेम ऑफ द अकाउंट डेबिट है, नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिट है. नरेशन लिखना है. नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, BEING. बीइंग से नरेशन स्टार्ट होता है. बीइंग से इस प्रकार से आपने ट्रांजेक्शंस किए. बीइंग में ये इस प्रकार से जो आपने ट्रांजेक्शन फिर क्रेडिट है या कैश है या आपने परचेस किए या क्रेडिट पे परचेस किए या क्रेडिट में सेल किए, उसके ऊपर उसका नरेशन से डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंट्री, इट इज कॉल्ड नरेशन. नरेशन यानी स्पष्टीकरण उस ट्रांजेक्शंस का आप इसमें लिखते हैं. ब्रैकेट में ब्रैकेट करते हैं आप, बीइंग लिखते हैं. इस प्रकार से उसका बीइंग का अर्थ होता है BEING. बीइंग मींस इस तरह एंट्री पास हुई, इस तरह एंट्री का ट्रांजेक्शन था. जो कुछ आपको परचेस किया सेल किया उसमें आप डिटेल इन शॉर्ट में लिखते हैं. बीइंग गुड्स परचेस, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम एंड श्याम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंट्री फॉर फ्यूचर रेफरेंस. फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप नरेशन. सो नरेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन और when you pass the entry into the general. इसलिए बुक कीपिंग का रिकॉर्ड जब आप मेंटेन करते हैं तब नरेशंस, डेबिट अकाउंट और एक अकाउंट आपका क्रेडिट आपका होता है, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम विच विल बी अडॉप्टेड नाउ. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से आप पूरा रिकॉर्ड्स नोंदी करते हैं, राइट डाउन करते हैं. इसलिए वन अकाउंट आर डेबिटेड, वन अकाउंट आर क्रेडिटेड इज मस्ट इनटू दिस
double entry bookkeeping system. So double entry bookkeeping system is play important role in our accountancy. तो इसमें जो इम्पोर्टेंस जो फॉर्मेट आपने दिए, the business transactions are recorded in financial books. Different financial books are we are maintaining into our business, but this is a prime book of our accountancy. Original entry we should write down into this book. It is called general. ये general आपका है. Therefore, these transactions must be recorded in the different types of books. He keeps the different account of records into this book. It is called general. So the number of books depend upon this size and nature of the business and volume transaction. But important book is our bookkeeping. Bookkeeping is an important book. So we should maintain the books of accounts maintained by every businessman. Maintain the two necessary books, general and ledger. So general play important role in our accountancy. So how to transactions are travel, we see the next point. How to transactions travels. How to transaction travels when you ask into this method. How to transactions travels. Transactions किस तरह travels होता है उसमें डिस्कस आप करेंगे. How to transactions travel. Transactions किस तरह travels होता है, we should be discussing now into this video. Accounting cycles and how to transactions are travels into these books we discuss now. The transaction travels into this our bookkeeping and accountancy. We discuss this is the most important concept in our accountancy into this video. How to transition the source of documents जो आपके होते हैं. How to transition travels source of documents. आपका जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी हैव, इट इज द सोर्सेस ऑफ आवर ट्रांजैक्शंस. सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसके बाद ट्रांजैक्शंस, आपका जो व्यवहार आपके होते हैं ट्रांजैक्शंस. इज द ट्रांजैक्शंस आर ट्राइबल इनटू दिस वे. सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शंस एज सर्टेन टू अकाउंट्स, एज सर्टेन टू अकाउंट्स. वन अकाउंट डेबिट and another account credit, that is called two accounts. Certain the two accounts. The two accounts are affected into these transactions. One account are DR and another accounts are CR. Credit. Classification of accounts. इसमें पर्सनल है क्या? We should classify personal account, real account, and nominal accounts. That is the classification of accounts. 5 categories we see: assets, liability, capital, revenue and expenses जो आपके होते हैं. अकाउंट क्लासिफाइड into the 5 categories. आपने इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया उसमें बताया कि अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है वो 5 कैटेगरीज में आपका होता है. उसमें assets, liabilities, revenue, income and gains, आपका expenses आपका होता है. ये आपके 5 कैटेगरी जो है assets, liability, capital, ये 3, रेवेन्यू और गेन से और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये 5 जो कैटेगरीज आपके अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू दिस 5 कैटेगरीज. इसलिए इस 5 कैटेगरी का जो क्लासिफिकेशन आप करते हैं अप्लाइंग द रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स. जैसे अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट और गेन्स एंड डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट. जैसे अप्लाइंग द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट. नॉमिनल अकाउंट से the rules of debit all expenses and losses, credit or gains and income. We should be applying the rules of, we should classify the accounts. When you classify the accounts into this 3 golden rules, we are applying the transactions. That is the accounts are classified into 5 categories. इसलिए 5 categories में आपका अकाउंट क्लासिफाई होता है. उसमें क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? एक एसेट्स का होता है आपका, एसेट्स एक, लायबिलिटी 2, लायबिलिटीज, तीसरा आपका रेवेन्यू, तीसरा आप कैपिटल, चौथा आपका रेवेन्यू एंड गेन्स, और 5वीं कैटेगरी आपकी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. That is the 5 category accounts are categories into the 5. इस 5 categories में आपके अकाउंट्स क्लासिफाई किए जाते हैं. The classification accounts, there are 5 categories. The personal, real, nominal accounts, which rules of account which are applying into these
How to transactions or travels? That is the way of transaction or travels. First, source of documents. Second, transactions. Asset in the two accounts. Which accounts are debited, which accounts are credited, and classification of accounts. Account to be debited, account to be debited, and account to be credited, and account to be credited. We should see into this travels of accounts के जो travels आपके होते हैं इसमें आपको देखना पड़ता है. That is the importance we have discussed now in this session. And then after we pass the entry into our journal. ये generally में आप entry pass करते हैं. And source of documents are play important role in your transactions. Transactions उसके बाद में आपका होता है asset in the two accounts, debit and credit, classification the accounts, account to be debited, account to be credited. Then after we pass the entry. That is the transactions are travel when you pass entry into our जनरल. जनरल में आप जब एंट्री पास करते हैं स्पेसिंग ऑफ जनरल, पहला कॉलम आपका डेट का होता है, दूसरा कॉलम आपका पर्टिकुलर का होता है, तीसरा कॉलम आपका एलएफ का होता है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. दैट इज स्पेसिंग ऑफ 1 2 3 4 5 कॉलम आर नेसेसरी टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल. जनरल मीन्स day to day transactions we are write down into this book. It is called journal. That is the transactions are travels. That is the way of transaction travels into this different ways. This is the next point, important points when you discuss the concept of journal. So every businessman performs a large number of transactions. These transactions cannot be remembered at glance. So he maintained the records into this book that is called journal. Concept of journal. Journal we discuss now into this lecture. What is journal entry? An entry made in the journal is called journal entry. When you entry made in a journal is called journal entry. The concept of journal we discuss now into this lecture. So books of accounts, we see the books of account. Books of account. बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपके होते हैं, विच इज द फर्स्ट द ओरिजिनल बुक या प्राइमरी बुक, विच इज द फर्स्ट बुक, द बुक ऑफ ओरिजिनल, द बुक ऑफ ओरिजिनल एंड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, एंड सेकंड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री उसे कहते हैं फर्स्ट एंट्री, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री या प्राइमरी बुक जो आपका होता है, जो प्रथम जो पुस्तक आपका होता है, बुक जो होता है, या प्राइम एंट्री या प्राइम बुक उसे कहा जाता है, या ओरिजिनल बुक या फर्स्ट स्टेज. In other words, which is the first entry, which we first entry आप write करते हैं, या first stage of accountancy. Accountancy की it is the original book. It is the first entry which we write in this book. That is the first, which is the books of accountancy are classified into the two way. The first book original entry and secondary book the final entry. Final entry into this write down this book इसका ledger. Final entry में क्या करते हैं? Ledger आप maintain करते हैं, which is the ledger records. Ledger entry. यहाँ पे हम लीड एंट्री करते हैं फाइनल में, यहाँ पे अपने क्या करते हैं जर्नल एंट्री पास करते हैं. जर्नल एंट्री आपका जर्नल एंट्री दैट इज द प्राइमरी बुक, दैट इज द ओरिजिनल एंट्री यू शुड राइट डाउन इन दिस बुक. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड देन वी पास द फाइनल एंट्री इनटू दिस लेजर. लेजर में आप क्या करते हैं फाइनल एंट्री लिखते हैं, इसे खाता कहा जाता है, इंडिविजुअल अकाउंट से ओपन करते हैं. सो ओरिजिनल एंट्री विच वी सी into this primary book, it is the first book which you see into this book of original entry. इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक जो आपका होता है, स्मरण पुस्तिका उसे कहा जाता है मेमोरेंडम बुक्स. मेमोरेंडम बुक्स मेंटेन बाय एवरी बिजनेसमैन. मेमोरेंडम बुक्स इसे मेमोरेंडम बुक कहा जाता है, या वेस्ट बुक उसे कहा जाता है वेस्ट बुक ऑफ अकाउंटेंसी. मेमोरेंडम बुक, वेस्ट बुक, जनरल
जनरल आप मेंटेन करते हैं रोजकृत और जनरल और जनरल 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 जनरल। और तीसरा जो बुक आपका इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है उन बुक में अंदर स्पेशल जनरल, इसमें स्पेशल जनरल इसमें मेंटेन इट्स सब डिवीजन ऑफ जनरल। जनरल एंट्री का सब डिवीजन है स्पेशल जनरल। जनरल फर्स्ट है मेमोरेंडम बुक्स, जिसे स्मरण पुस्तिका कहते हैं। स्मरण पुस्तिका ये आपकी रोजनिशी या उसे दैनंदिनी कहा जाता है, या स्पेशल ये विशेष अकाउंट आपको जो प्रिपेयर करते हैं, विशेष बुक्स जो मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल में क्या होता है उसका डिस्कस आपको करना है। यानी जनरल एंट्री ओनली डे टू डे ट्रांजेक्शंस पे आर एडेड इनटू दिस बुक, यहां तक उसका अर्थ सीमित नहीं होता है। तो स्पेशल जनरल में इसमें सी स्पेशल जनरल वी मेंटेनिंग परचेज बुक, इसमें परचेज बुक इज सब डिवीजन जनरल मेंटेन, सेल्स बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, कैश बुक के बाद में बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। इसका नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां आपका रहता है इसमें 8 जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर। That is the 8 types of subsidiary books we are maintaining into this special journal. That is called subsidiary book. It is called सहायक पुस्तकें। सहायक पुस्तक उसे कहा जाता है जो आपको कोऑपरेट करता है, सहायक करता है। when you pass entry into this special journal, ये स्पेशल जर्नल आपके है। परचेज बुक सेपरेट परचेज एंट्री और परचेज ट्रांजेक्शंस भी राइट ऑन इनटू दिस बुक। परचेज बुक सेल्स में पूरी सेल्स की एंट्री लिखते हैं। परचेज रिटर्न एक माल आपका है तो परचेज बुक में मेंटेन करते हैं। सेल किया हुआ माल आपका रिटर्न आता है तो सेल्स रिटर्न में आप उसकी एंट्री में पास करते हैं। और कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू दिस कैश बुक। और बिल रिसीवेबल एंट्रीज टू राइट ऑन द बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक्स एंड जनरल एंट्री, जनरल प्रॉपर बुक्स वी आर मेंटेनिंग दिस स्पेशल। द सब डिवीजन ऑफ जनरल, एक जनरल एंट्री का सब डिवीजन है, इट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। इट इज अ सेपरेट टॉपिक वी डिस्कस नाउ इनटू नेक्स्ट लेक्चर इनटू दिस concept of general. It is a vast concept of our accountancy. So into this day-to-day transactions we are write down into this original book. Original entry first we are write down this book is called journal entry. So the concept of general, into this concept which is the books of account, books of original entry and books of entry, final entry which we made into the ledger. Different types of data we discuss now into this topic ledger. So general primary entry should write down. So memorandum book is maintained by the businessman. A lot of businessmen have maintained their records into the general book, memorandum books. Memorandum books is not a book of account. Memorandum book is not a book of accounts. ये book of accounts का book इसमें so businessman this book is memorandum book is not the book of accounts because it is does not have to debit or credit entry. It is does not have debit and credit entry. Debit and credit entry does not have write down into this book. Does not have write down into this book. So businessmen have do not maintain their records into this memorandum books because debit and credit entry इसमें लिखे जाते हैं, इसलिए memorandum books businessmen do not have maintain their records into this memorandum books. There is a because it is does not have to debit and credit. It is a use for noting down in brief. एक नोट बोल के एक
कुछ भी नोंद रखना ट्रांजेक्शन के लिए मेमोरेंडम बुक स्मरण पुस्तिका लिखी जाती है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन हैव सम लिमिटेशंस, मानवीय मेंदु को मर्यादा है, वो याद नहीं रख सकता ज्यादा। इसलिए क्या करता है बिजनेसमैन, कुछ एंट्री रहती है वो लिख कर रखता है स्मरण बुक में। एक मेमोरेंडम बुक उसे कहा जाता है। उसमें डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं जाता, खाली डायरेक्ट याद रखने के लिए एंट्री कर 100 बकाया लिखा जो कहा जाता है हिंदी में। लिख के रखने के बाद क्या होता है, फ्यूचर रेफरेंस आपको मिलते हैं, कौन सी डेट को किसको कितने देना है, किसको कितना लेना है, क्या ट्रांजेक्शन आपने किया था किस डेट को, वो आप मेमोरेंडम बुक्स में याद रखने के लिए आप क्या करते हैं, उस बुक्स को मेंटेन करते हैं। इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री इट डिड नॉट राइट डाउन इनटू दिस मेमोरेंडम। डेबिट और क्रेडिट आप लिखते नहीं इसके अंदर, ओनली सिंपली आप राइट डाउन सीक्वेंस लिखते हैं 1 2 3 4, एंट्री पास करते हैं, डेट लिखते हैं और याद रखने के लिए मेमोरेंडम बुक से कहा जाता है। इसलिए बिकॉज इट डज नॉट हैव टू डेबिट और क्रेडिट एंट्री, इट इज यूज फॉर नोटिंग डाउन। नोटिंग डाउन के लिए इसे यूज किया जाता है इस मेमोरेंडम बुक्स के लिए। इन ब्रीफ the transactions as and when they have take place. Base book is kept for the sake or meaning of make the rough notes. Rough notes which we write down in these books. It is a उसे कहा जाता है बेस बुक। एक नोट बोल के एक रनिंग नोट आप जो लिख के रखते हैं याद रखने के लिए। So the base book is kept for the sake of memory to make the rough note. रफ नोट है ना, कच्ची नोट जो आप लिखते हैं ध्यान में रखने के लिए किसको क्या ट्रांजेक्शन आपने की, इसलिए मेमोरेंडम बुक्स आप बेस बुक मेंटेन करते हैं सो दैट नथिंग इंपॉर्टेंट स्लिप अवे फ्रॉम द मेमोरी। सो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो आपकी है, डबल एंट्री सिस्टम यूज फॉर रिकॉर्डिंग द क्लियरली विजुअलाइज द जनरल एज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स वी आर रिकॉर्डिंग इनटू दिस एंट्री इट इनटू दिस जनरल। इस जनरल में आप एंट्री पास करते हैं। इसलिए जनरल बुक जो होता है उसे डेली रिकॉर्ड्स बिजनेसमैन हैव मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इनटू दिस जनरल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर अकाउंट में से। सो इनटू दिस लेक्चर्स वी डिस्कस द अकाउंटिंग साइकिल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग साइकिल जो आपकी होती है, जो सर्कल आपका जो अकाउंटिंग का होता है, जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं बुक्स के अंदर, उसके बारे में डिस्कस आपको करना है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, द कंटेंट्स ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, जो कंटेंट्स उसके अंदर है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, वी डिस्कस नाउ कंटेंट्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में जो कंटेंट्स आपके होते हैं डिस्कस नो अकाउंटिंग साइकिल के जो कंटेंट्स उसमें है उनसे कंटेंट्स का समावेश उसके अंदर होता है इस जनरल एंट्री के अंदर, इस साइकिल के अंदर। विल सी डिटेल्स इन दिस लेक्चर। सो अकाउंटिंग साइकिल रीडिंग आपको लिखना है। जनरली क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अकाउंटिंग साइकिल एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग साइकिल, बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग साइकिल एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग साइकिल एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये कंसेप्ट देखते हैं अभी। ये अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? Into this accounting cycle, we see the process of accounting cycle consists of following steps. Process of accounting cycle. Process of accounting cycle contains the following steps. Follow the following steps. Accounting cycle consists of the following steps. Consist of फॉलोइंग स्टेप्स, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। नीचे दिए हुए स्टेप्स उसमें इसका समझ होता है, कंसिस्ट होता है। वो स्टेप नंबर 1 जो स्टेप्स आपके हैं जो एंट्री आप पास करते हैं इसके अंदर, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस का क्या करते हैं आप? एनालिसिस करते हैं। वो ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है उसका एनालिसिस आप करते हैं फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कहां से करते हैं आप एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस? फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपके होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट द्वारा आप उसका एनालिसिस करते हैं। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके? मोस्टली बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं उसमें डिपॉजिट स्लिप है, प्लेन स्लिप है, विड्रॉल स्लिप है, चेक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिप्स वी सी इनटू दिस बैंकिंग सेक्टर। उसी तरह बिजनेस के अंदर भी अलग अलग जो बिजनेस आपके होते हैं उसके रिसिप्ट आपके होते हैं, अलग अलग टाइप के रिसिप्ट आप देखते हैं। कैश मेमो आपका होता है,
जो बिजनेस, जिस टाइप का बिजनेस उस टाइप का बिजनेस मेंटेन देयर स्लिप्स, उस टाइप की स्लिप को क्या करता है, मेंटेन करते रहता है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्या क्या उसकी यूनिट, क्या 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 सेल कर रहा है, उसके बारे में उसमें डिटेल्स में रहता है। तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटिंग साइकिल में एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस फ्रॉम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वी सी द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग की साइकिल की जनरल एंट्री में प्रोसेस किस तरह होती है, अकाउंटिंग साइकिल किस तरह आपका साइकिल होता है, किस तरह। सेकंड जो आपका है जनरलाइजिंग द ट्रांजेक्शंस, सेकंड आपका क्या होता है, जनरलाइजिंग द ट्रांजेक्शंस, जनरलाइजिंग द ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस का जनरलाइजिंग करते हैं इस फॉर्मेट का, जनरलाइजिंग द ट्रांजेक्शंस। लेजर, उसके बाद लेजर पोस्टिंग आप करते हैं, लेजर पोस्टिंग आपको होती है, यानी एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस फ्रॉम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जनरलाइजिंग द ट्रांजेक्शंस, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग ईच लेजर अकाउंट्स, बैलेंसिंग ईच लेजर अकाउंट्स। ईच लेजर अकाउंट्स क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, उसकी टोटल बैलेंसिंग करना है, टोटल करना, उसकी बैलेंस निकालना वहां पे, बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करते हैं। इस ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस मीन्स द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की जो लिस्ट आपकी होती है उसके ट्रायल बैलेंस। रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री, रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री। 7 जो साइकिल आपका स्टेप जो आपकी होती है, एक पोस्टिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, पोस्टिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, पोस्टिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, पोस्टिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। 8 नंबर की जो स्टेप आपकी पोस्टिंग द एडजस्टमेंट एंट्री, रिकॉर्ड ऑफ क्लोजिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोजिंग एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोजिंग एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोजिंग एंट्री। 9 नंबर की जो साइकिल की जो स्टेज आपकी है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल जो आपका होता है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जनरलाइजिंग द ट्रांजेक्शंस, लेजर, बैलेंसिंग द ईच लेजर, preparation of trial balance, recording adjustments, posting of adjustments, record closing entry and preparation of final accounts। ये आपका अकाउंटिंग साइकिल है इन सिंपल वे। फर्स्ट, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर क्या करते हैं आप, ट्रांजेक्शंस करते हैं, ट्रांजेक्शंस करते हैं यानी आप जर्नल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री, इसका जो सब डिवीजन है सब्सिडी बुक्स, विच मेंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, सब्सिडी बुक्स आप मेंटेन करते हैं। इस दोनों के ऊपर जो आप एंट्री पास करते हैं, नेक्स्ट स्टेज आपकी होती है वो होती है लेजर पोस्टिंग, लेजर अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हैं। लेजर अकाउंट का जो आप बैलेंसिंग आप करते हैं लेजर अकाउंट को, उस बैलेंसिंग के द्वारा आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर आप प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट, उसे कहते हैं फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट और फाइनल अकाउंट जो आपका है। इनटू दिस फाइनल अकाउंट्स वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 3 अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस जो आपको दिया जाता है तो एडजस्टमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। सो इनटू दिस अकाउंटिंग साइकिल विच इज एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस, द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस पास करते हैं। जनरलाइज ट्रांजेक्शन, ये एंट्री आप जनरलाइज करते हैं, उसकी जनरल एंट्री आप पास करते हैं। सब्सिडी बुक्स भी उसकी मेंटेनिंग द बिजनेसमैन, आप सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल बुक्स, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर। 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स में मेंटेनिंग इनटू दिस, इट इज अ सब डिवीजन ऑफ जनरल। जनरल एंट्री का एक सब डिवीजन आपका होता है सब्सिडी बुक्स, एक सेपरेट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। उसके बाद में लेजर अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं, ये अकाउंटिंग साइकिल आपका है। उसके बाद में ट्रायल बैलेंस, लेजर बैलेंस के बेस के ऊपर आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ आवर अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी की लास्ट स्टेज आपकी फाइनल अकाउंट है, और फर्स्ट स्टेज आपकी जनरल। फाइनल अकाउंट लास्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज की आपकी
जनरल एंट्री। इसलिए अकाउंटिंग साइकिल जब आप देखते हैं तो फर्स्ट स्टेज आपकी जो है, फर्स्ट स्टेप आपके जनरल एंट्री और लास्ट स्टेज आपकी फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपकी लास्ट स्टेज है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज आपकी होती है, जनरल के ऊपर से आप लेजर मेंटेन करते हैं, लेजर के ऊपर से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस के ऊपर आप प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स। इस फाइनल अकाउंट आप 3 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, the 3 accounts are maintaining into this. That is the accounting cycle of our bookkeeping accounts. ये आपका अकाउंटिंग साइकिल आपका होता है, उसी पास एंट्री इंटू लेजर। फर्स्ट आपका जनरल, उसके बाद लेजर, उसके बाद में मेंटेन द ट्रायल बैलेंस, देन यू आर प्रिपेयर द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इसमें द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपके हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में डिटेल्स आपको देखना है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका कैश मेमो आपका होता है, बिल इनवॉइस आपका होता है, पे इन स्लिप है, सोर्स है। जब एंट्री आप पास करते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं, उसे कहा जाता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो पहला आपका वाउचर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर भी आपसे, वाउचर्स में अलग अलग टाइप के जो वाउचर्स आपके होते हैं, इसमें कैश मेमो है, कैश मेमो आपके होते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कैश मेमो, कैश मेमो आपका होता है कैश ट्रांजेक्शन के लिए। कैश मेमो के बाद में आपका बिल्स इनवॉइस, बिल होते हैं आपके बिल्स, या उसे कहते हैं इनवॉइस। इनवॉइस यानी पावती आपकी होती है, प्रमाणिक आपके पास होते हैं। रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट, चेक आपके होते हैं, चेक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक आपको देखना है। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप, विड्रॉ स्लिप, बैंकिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो भी इसमें आते हैं वाउचर्स के अंदर। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके, इस डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, पूरी एंट्री पास करते थे। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, दैट इज द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं, एंट्री पास इनटू दिस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर कैश मेमो आपका होता है, डिफरेंट टाइप्स का आपके रिसिप्ट आपकी होती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन तो चेक आपके पास होता है, बिल्स अलग अलग टाइप्स के बिल्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल आपके पास है, बीआर उसे कहा जाता है, बिल्स पेबल आपके होते हैं, पे इन स्लिप आपकी होती है, विड्रॉ स्लिप आपकी होती है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, दैट इज इटीसी, दैट इज द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर हेल्प टू पास आवर एंट्री। एंट्री पास करने के लिए आपको हेल्प होता है, दैट इज अ लीगल प्रूफ, दैट इज द लीगल डॉक्यूमेंट्स व्हिच व्हेन यू पास योर एंट्री इनटू दिस जनरल। Which is the features of general? जनरल की फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ जनरल, जनरल की वैशिष्ट्य क्या है? तो डेली रिकॉर्ड्स वी आर राइट डाउन दिस बुक्स, डे टू डे ट्रांजेक्शंस वी आर राइट डाउन सिस्टमैटिकली एंड डेट वाइज एंड chronological. Date wise records we are write down in this book. That is the first features we see. It is a book of original entry. It is a book of original entry. It is the first stage. It is the first stage of our entry. Entry की first stage आपकी है प्राइमरी एंट्री, प्राइम एंट्री इसमें राइट करो, प्राइम एंट्री आप इसमें राइट करते हैं, प्राइम एंट्री इसमें राइट डाउन इन दिस बुक्स, प्राइम एंट्री आप राइट डाउन करते हैं, इज द फर्स्ट एंट्री बुक, फर्स्ट एंट्री बुक,
First entry book, that is features of journal. It is the original entry. It is the first stage of our accountancy. It is the recording transactions in systematic manner. Recording the transactions systematically, date wise you should record maintain into these books. It records transactions systematically. Record transactions systematically. Yeah, date wise, day to day transactions. It is record of transactions in a systematic manner. In a systematic manner में आप लिखते हैं in a systematic manner. Systematic records by maintaining, that is the features of the journal entry. It is a gateway to ledger. It is a gateway. लेजर पोस्टिंग का एक गेट है, यहाँ से आपकी लेजर पोस्टिंग स्टार्ट होती है. इट इज अ प्रवेश द्वार आपका, उसे कहा जाता है लेजर अकाउंट्स का. इट इज अ गेटवे टू द लेजर. लेजर का एक गेटवे आपका होता है. दैट इज द फीचर्स ऑफ आवर एंट्री, आवर जनरल एंट्री. द यूटिलिटी ऑफ जनरल एंट्री. जनरल एंट्री की जो यूटिलिटी है, इट कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस एवरी डे. यानी डे टू डे ट्रांजेक्शंस वी हैव write down into this book. It is called general. That is the first utility of our general. Second, to provide the complete record of transactions. To provide the complete record of transactions into this general. That is the both aspects of transactions are recorded at one place. Since the narration of transactions are written in the general. नरेशन इसमें लिखा जाता है, स्पष्टीकरण, डिटेल अबाउट, एक्सप्लेनेशन अबाउट आवर एंट्री. दैट इज द यूटिलिटी ऑफ आवर जनरल. इट इज नो नीड टू गेट एक्सप्लेनेशन इन लेजर. लेजर में उसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है. नरेशन लेजर अकाउंट में नेसेसरी नहीं होता, बट इन जनरल नरेशन इज मोस्ट. इट फैसिलिटेट्स द क्रॉस चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस. ट्रांजेक्शन की क्रॉस चेकिंग आपको इसकी फैसिलिटीज में होती है. फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कायदे की दृष्टि से आप देखते हैं इस जनरल एंट्री के बारे में. द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी. इन द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज ऑल्सो जनरल becomes necessary. The court recognize the general as an evidence of approving and disapproving claims. So it is a help to locate the prevent errors. That is the most important utility of our जनरल. ये जनरल की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज आपकी होती है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स और अकाउंटेंसी. सो व्हेन यू फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, द स्टेप्स व्हिच वी फॉलो द रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी. रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द डिबेट बुक. The step which we follow when you passing entry, the steps is converting the transactions into the general entries. The first, the record the transactions in the base book. Rules applying debit and credit into this when you pass the entry. That is the most important play. When you pass your entry, which means two accounts are affected, one account are debited and another account are credited into this general entry. तो ये जो इम्पोर्टेंस का था, जो यूटिलिटीज आपने देखी इसके अंदर, जनरल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन आवर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. जब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हम करते हैं तो जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट आपका है, तो एक बार फॉर्मेट देखते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. इसका जो फॉर्मेट है, एक बार फॉर्मेट देखते हैं और इंपॉर्टेंस इसका देखते हैं फॉर्मेट के अंदर. तो फर्स्ट ये फॉर्मेट ऑफ जनरल. थोड़ा ध्यान दीजिए किस तरह इसका फॉर्मेट होगा. इस जनरल एंट्री जब पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्री, आपको जो लिखना पड़ता है इसके अंदर स्पेसिफिक में. तो पहले जो आप लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ
नेम ऑफ द फॉर्म जनरल एंट्री। राम श्याम जो बुक्स जिसके इसमें आपको एंट्री पास करना है उसका नाम लिखते हैं, बुक्स ऑफ राम एंड मेसर्स राम ट्रेडर्स वगैरह वगैरह, जनरल एंट्री। पहला कॉलम जो होता है आपका हमेशा डेट का होता है, इसमें नंबर बोलेंगे। नंबर 2 का कॉलम आपका होता है पर्टिकुलर, इसको ज्यादा जगह रखते हैं। इसके बाद में लेजर का पोस्ट करते थे, LF कॉलम आपका होता है लेजर फोलियो। बाद में डेबिट अमाउंट इन रुपीज, इंडिया में करेंसी रुपी इसलिए डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। ये लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर, मोस्टली स्टूडेंट लिखते नहीं है, खाली डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। डेबिट क्रेडिट का रुपीज आपके इंडिया में करेंसी रुपीज है। LF का कॉलम छोटा होता है तो उसके छोटी लाइन लिखना है, खाली 5 कॉलम जो आपको दिया जाता है गिवन विच वी राइट डाउन द नेम ऑफ द LF नंबर, नेम ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट एंट्री। यहाँ पे आपको डेट लिखना है, सपोज डेट है आपकी 25 मार्च 2021, ये आपने डेट लिखी। नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, जो आपका डेबिट होता है आपको डेबिट लिखना है। एंड नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड। उसके बाद में आपको ब्रैकेट में लिखना है नरेशन, नरेशन स्टार्ट वर्क फ्रॉम बीइंग, नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है तो नरेशन स्टार्ट वर्क फ्रॉम बीइंग, उसको ब्रैकेट से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद पर्टिकुलर कॉलम तो हॉरिजॉन्टल आपको लाइन, 2 पैरेलल लाइन आपको खींचना है, एंट्री को आपको क्लोज करना है, ऐसे बोलते हैं एंट्री को क्लोज करना। अकाउंट टू बी डेबिट, जितने अमाउंट आपका डेबिट हुआ उसी से आपका अनदर अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए सेम अमाउंट से, और बाद में पेज खत्म होने के बाद इसके आपको टोटल करना है। बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए, बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ। LF में आपको पेज नंबर दिया होगा तो पेज नंबर आपको लिखना है, नहीं दिया तो फिर डैश करें। तो डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखना है, सेम अमाउंट आपका इक्वल अमाउंट आपका क्रेडिट में आना चाहिए। 1000 आपने डेबिट में लिखते तो सेम अकाउंट 1000 आपका क्रेडिट में आएगा। 1000 आप डेबिट में लिखते हैं, एज सेम अमाउंट ऑफ क्रेडिट में आपको लिखना है। और नरेशन लिखना है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, कैश है, किससे आपने परचेस किए, कितने रुपए में परचेस किए, वो आप लिख सकते हैं। वो रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए नरेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर जनरल में नरेशन इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। सपोज एक एंट्री आप पास करते हैं, इसके अंदर एक एग्जांपल देखते हैं। आपको एक एंट्री समझो आपको दी आज 25 मार्च 2011 और आपके ट्रांजेक्शन समझो, ट्रांजेक्शन आपका हुआ, सपोज आपका ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन इन ₹1000 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये आपका ट्रांजेक्शन है। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, 1000 रुपीज डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। इस अकाउंट की एंट्री को जब पास करते हैं 1000 रुपीज डिपॉजिट इनटू बैंक, 1000 रुपये आपने बैंक में पास किए, डिपॉजिट किए, कैश आपके पास से गए, कैश अकाउंट आपका डेबिट किया होगा, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, DR फॉर डेबिट कितना होगा 1000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट सेंड 1000, ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी। हाउ टू पास इन डेट के बारे में आप देखेंगे। सपोज आपकी डेट है 25 मार्च 2021, आपके पास एंट्री इनटू द जनरल, इसमें एंट्री किस तरह पास करते हैं, इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम, जो का ट्रेडर्स आपका होगा उसका नाम आप लिखेंगे। यहाँ पे एंट्री लिखते हो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक वर्ड छोड़ के आपको टू लिखना है, टू कैपिटल निकालना है, टू ये चलता नहीं, टू आपको ये लिखना है, ये टू जो है इसको नहीं यूज किया जाता है, कैपिटल टी निकालना है आपको, ये यूज करना है। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट CR लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्रेडिट में आपको अमाउंट लिखना है 1000, कैश अकाउंट क्रेडिट है, डेबिट कॉलम में डैश करो, बी दैट इज डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ये ट्रांजेक्शन क्या है, 1000 डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, 1000 रुपए कैश अपने बैंक में जमा किए, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट की, और 2 पैरेलल में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींचना है, दैट इज
द पास द एंट्री इनटू द जनरल उसे कहा जाता है 1000 क्रेडिट 1000 क्रेडिट। इस तरह सेकंड डेट आपके 26 मार्च 2011 2021। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है समझो गुड्स सोल्ड या गुड्स परचेस, जो कुछ आपकी ट्रांजेक्शन हुई वो ट्रांजेक्शन कंटिन्यू आपको यहाँ पे पास करना है। अब उस मंथ खत्म होने के बाद जब ये 31 मार्च जब आपका क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट मंथ जो आपका आता है मार्च के बाद अप्रैल, 1 अप्रैल की एंट्री आपको पास करना है। जब बुक आपका खत्म होता है पेज, तो उसकी टोटल करना है और नेक्स्ट पेज पे आपको उसको फॉरवर्ड करना है। बैलेंस कैरी डाउन करने के बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको करना है। और इस तरह कंटिन्यू 12 मंथ की जो आपका अकाउंटिंग ईयर जो आपका है, अकाउंटिंग ईयर कौन सा आपका अकाउंटिंग ईयर आपका कौन सा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस 12 मंथ के बीच में जो आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उस रिकॉर्ड्स की डेट खत्म होने के बाद अगले साल के लिए नेक्स्ट अब वेस्ट ऑफ बुक या जनरल एंट्री के लिए अब जनरल एंट्री आप अलग से सेपरेट पेज के ऊपर आप मेंटेन करते हैं। 12 मंथ्स की एंट्री आप पूरी कंटिन्यूसली सीक्वेंस लिखते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च को पूरे आप लेजर्स जनरल एंट्री आप क्लोज करते हैं। लेजर पोस्टिंग आपका डेली आप रिकॉर्ड्स करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो मंथली लेजर रिकॉर्ड्स वी आर मेंटेनिंग रेगुलरली। सो इस तरह मार्च एंड में आपको पूरा हिसाब क्लियर हो जाता है। हिसाब चेक करते हैं, which we see the exact profit and loss of our business, because every business have profit motivated business, because every business का जो मेन एम होता है वो earn a lot of profit। इसलिए मार्च में जब अकाउंट क्लोज करते हैं, उसके बाद में आप लेजर अकाउंट्स मेंटेन करते थे डेली मंथली, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। वी सी द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आवर बिजनेस, arithmetical accuracy when maintaining our records into this जनरल में जब रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं सिस्टमेटिकली डेट वाइज एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ विच मेंटेन द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो आपका है कैश मेमो, रिसीप्ट, पे स्लिप, जो आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जनरल एंट्री की आप एंट्री करते हैं, जनरल रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं। जनरल का मेन मीनिंग क्या होता है? जॉर मीन्स डे टू डे ट्रांजेक्शंस आर राइट डाउन इनटू दिस बुक, इट इज कॉल्ड जनरल एंट्री। ये आपकी जनरल एंट्री आपकी होती है। इस तरह एंट्री आपको पास करना है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस फॉर्मेट जनरल। इससे जनरल का स्पेशल आपको आता है, इस स्पेशल आपको ड्रॉ करना है एग्जाम के अंदर, 5 मार्क के लिए आता है और एंट्री आपको 10 मार्क के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसमें और में आपको ये आता है क्वेश्चन। तो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, स्पेशल ऑफ जनरल। जनरल का क्या है? स्पेशल ऑफ टाइम। ये स्पेशल आपको ड्रॉ करते हैं आपको 5 मार्क के लिए। अकाउंटिंग ईयर जो आपका है उसमें आपको इस एंट्री को पास करना है, 5 मार्क के लिए आता है स्पेसिम ऑफ जनरल। ये आपका होगा स्पेसिम, ये स्पेसिम ऑफ जनरल, स्पेसिम ऑफ जनरल जो आपका स्पेसिम। इसमें क्या देखिए आपको नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, नैरेशन स्टार्ट फ्रॉम बिल, ब्रैकेट में आपको बिंग लिखना है। बिंग माने ऐसा प्रकार, इस प्रकार से आपने गुड्स परचेज किए, सेल किए, क्या डिपॉजिट किए, कैश विड्रॉल किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रांजेक्शन इस टाइप का, उस टाइप का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण आपको यहाँ पे लिखना है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहता है ये, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में आप डेट देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि एंट्री कैश की है या क्रेडिट की है या कुछ पेंडिंग आपके है इसके पास, या किस दुकान से आपने माल परचेज किया, किस बिजनेसमैन से आपने माल परचेज किया, किस व्यक्ति से आपका ट्रांजेक्शन हुआ, वो ट्रांजेक्शन किस टाइप का है उसमें आपको समझ में आता है। इसी तरह राइट नरेशन इज मस्ट टू पास द एंट्री। जब आप एंट्री पास करते हैं नरेशन जरूर रहता है। लेजर एंट्री में नरेशन इज नॉट नेसेसरी, इट इज ऑप्शनल। आप नरेशन लिखो या मत लिखो लेजर पोस्टिंग के वक्त, मगर जनरल एंट्री में नरेशन आपको लिखना है। स्टार्ट काउंटिंग अकाउंट, जो अकाउंट आपका दो अकाउंट जो अफेक्टेड आपके होते हैं, जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, वो जो डेबिट होता है, यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स आपको फॉलो करना है और इस एंट्री को आपको पास करना है। ये था आपका टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल्स में, हाउ टू पास एंट्री इनटू जनरल। तो नेक्स्ट इसमें आपको देखेंगे कि जनरल एंट्री क्या होती है। ये नया सिलेबस आपका है, जीएसटी की एंट्री किस तरह पास की जाती है, जीएसटी में कौन कौन से गुड्स आपके आते हैं, 0% में कौन से, 5% में किस गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ द जनरल आपका है। जीएसटी की एंट्री आपको आती है एग्जाम के अंदर 2.5 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसलिए हाउ टू पास एंट्री इनटू द जनरल व्हिच इज द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।